سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غازی قادری اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہاتھ جوڑ کر کے منت و سماجت کرو گے۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، یہ دنیا کا نیتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا پردھان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا ایم پی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ اما دے سکتا ہے تو دنیا کا باپ نہیں، غوث پاک دے سکتے ہیں، آمینہ کے لال دے سکتے ہیں، عبداللہ کے نور نظر دے سکتے ہیں۔ پردھان کی طاقت نہیں کام آئے گے۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، اپنے سینے میں نبی کی محبت بسا کر کے قبر کے اندر جاؤ، تاکہ منکر نکیر دیکھے تو بولنے پر مجبور ہو جائے یہ دنیا دار کا غلام نہیں ہے، اس کے سینے میں احمد مختار کی محبت ہے، آمینہ کے لال کی محبت ہے۔ اب تو بات چل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی سمجھ میں آ رہا تو بول دو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آپ جو ہے کسی ایم ایل اے کے پاس پہنچو گے، ایم ایل اے صاحب کے دربار میں اپنا عریضہ پیش کرو گے۔ ایم ایل اے صاحب، آپ ہمارے جو ہے وِدھان سبھا کے ایم ایل اے صاحب ہیں، فلاں نیتا صاحب ہیں، ہمارا کام بنا دیجئے۔ ایم ایل اے صاحب سے جو کام ہوگا وہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، حضرات محترم، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ اگر پوچھو گے ایم ایل اے صاحب آپ کا پاور کہاں تک ہے، تو اس کا جواب ہوگا جہاں تک ہمارا وِدھان سبھا لگتا ہے وہاں تک ہمارا پاور ہے، وہاں تک ہماری رسائی ہے۔ علامہ مقبول صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ پہنچو گے اور پہنچنے کے بعد پوچھو گے علامہ صاحب یہ بتائیے ایم پی کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کا جواب ہوگا 2-4 ضلعوں میں ایم پی کی رسائی ہوا کرتی ہے، ایم پی کی قوت ہوا کرتی ہے۔ یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، پردھان منتری کے پاس جاؤ گے، پردھان منتری کی طاقت کا عالم پوچھو گے، علامہ عبدالصاب آصف خان صاحب قبلہ کا جواب ہوگا کہ پردھان منتری پورے ملک کا مالک ہوتا ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک ڈی ایم پورے ملک کے ایک ڈی ایم جو ہے پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اللہ اللہ، جب جو ہے پردھان منتری کی طاقت کو علامہ مقبول صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پہنچو گے اور جواب دو گے علامہ صاحب ہم نے پردھان کی طاقت کو جانا ہے، ایم ایل اے کی طاقت کو پہچانا ہے، ایم پی کی طاقت کو جانا ہے، پردھان منتری کی قوت کو پہچانا ہے، ڈی ایم کی طاقت کو ہم نے جانا ہے، پردھان منتری کی طاقت کو ہم نے جانا ہے، ایم ایل اے کی قوت کو ہم نے پہچانا ہے، لیکن غوث اعظم کی طاقت کو ہم نہیں جانتے ہیں، غریب نواز کی طاقت کو نہیں پہچانتے، سید سالار کی طاقت کو نہیں جانتے، مخدوم اشرف کی طاقت کو نہیں جانتے۔ اے سنیوں، اللہ اکبر مسلمانوں، آپ کو فخر کرنا چاہیے، صدیق اکبر کی صداقت ہمارے لیے، فاروق اعظم کی عدالت ہمارے لیے، عثمان غنی کی سخاوت ہمارے لیے، مولا علی کی شجاعت ہمارے لیے، حسنین کریمہ کی شہادت ہمارے لیے، علی کی شہادت ہمارے لیے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے جب بات آئے نماز کی تو سر جھکانا تمہارا کام ہوگا، سر کو قبول کرنا میرے مولا کا کام ہوگا، میرے رب کا کام ہوگا۔ اور زمانہ کو بتا دو مسلمان کا سر دنیا دار کے سامنے نہیں، اگر سر جھکے گا تو پروردگار کی بارگاہ میں، اور دل جھکے گا تو مدینے کے احمد مختار کی بارگاہ میں۔ مچل کے بول دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ایسا لگ رہا پروگرام ابھی شروع ہوا ہے، آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں علامہ مقبول صاحب کا جواب ہوگا۔ قاری ظہور احمد، ایم پی کی قوت کو ہم نے جانا ہے، ڈی ایم کی طاقت کو ہم نے پہچانا ہے، پردھان کی رسائی کو ہم نے جانا ہے، ڈی ایم ایس پی کی طاقت کو ہم نے جانا ہے، لیکن غوث اعظم کے مقام، غوث اعظم کے طاقت کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ پہنچو گے اور گنبد اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ
हाथ जोड़ करके कहोगे ये सरकार आला हजरत आप तो कंजुल करामत है, आप तो मुजद्दिद अहले सुन्नत है, आप तो सुन्नियों की जान है, आप तो सुन्नियों की शान है, आप तो सुन्नियों की पहचान है। ये सरकार आला हजरत आप ही बता दीजिए तो बरेली की सरजमी से आवाज़ आएगी वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। यहाँ कोई किस्सा कहानी की बात नहीं हो रही है, गौसे आज़म की ज़ात बता रहा हूँ मुसलमानों। गौसे पाक का मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह। अभी आपने जो है गौसे आज़म की ताकत को नहीं जाना, एसपी की ताकत को पहचाना है, डीएम की कुव्वत को जाना है, गवर्नमेंट की ताकत को पहचाना है, राष्ट्रपति की ताकत को जाना है, लेकिन कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है। यह तो मक्का में जो है आमीना का लाल था और यह तो बगदाद में उम्मुल खैर फातिमा का लाल है। हजरात तवज्जो चाहूँगा, बचल के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे गौस की बात चली है, ताजदार बगदाद की बात चली है, गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। गौसे आज़म की ताकत को हम नहीं जानते हैं, हम मुसलमान सरकार गौसे आज़म की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे आलम तसव्वुर में। ये बड़े पीर दस्तगीर आप तो रोशन ज़मीर है, आप तो जो है बड़े पीर है, आप ही बता दीजिए आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपके जो है मकामात क्या है। गौसे आज़म के गुंबद से जवाब आता है ये मेरे गुलामों सुनो सुनो, गौसे आज़म को अल्लाह ने इतना पावर अता फरमाया है, गौसे आज़म को अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत अता फरमाई है, इतना पावर अता फरमाया है कि गौसे आज़म की वो ज़ात है जब तक सूरज जो है गौसे आज़म की बारगाह में सलाम नहीं करता है, जब तक गौसे आज़म सूरज को इजाज़त नहीं देते हैं उस वक्त तक सूरज तुलू नहीं होता है। जब मेरा गौस सूरज को इजाज़त देता है तो सूरज तुलू होना शुरू होता है, और गौसे पाक जब सूरज को इजाज़त देते हैं तो सूरज गुरूब होना शुरू होता है। तो पता ये चला कि जब बगदाद के राजा का ये आलम है तो मदीने के महाराजा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हाफिज़ अमर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वार बाजा न देखो, इधर देखो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हमें यार गौसे आज़म का बात बगौसे पाक की बात चली है। अल्हम्दुलिल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। अल्लाह का वली अगर डरता है तो खौफ खुदाबंदी से डरता है, अल्लाह का वली अगर डरता है तो ताजदार मदीना से डरता है। अल्लाह का वली किसी के दर का मोहताज नहीं होता, अल्लाह का वली किसी के दर का भिखारी नहीं होता। वली अल्लाह के माने होता है अल्लाह का दोस्त, यानी अल्लाह का दोस्त होता है। आज ये मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमानों, मेरे सरकार गौसे आज़म का मकाम देखो। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये महफिल आप लोगों ने सजाई है। हजरात आपको बताना होगा, आज तो देखा जा रहा है कोई फला नेता का प्रचार कर रहा है, कोई फला नेता का प्रचार कर रहा है, किसी के हाथ में चुनाव निशान साइकिल है, किसी के हाथ में चुनाव निशान कमल का फूल है, किसी के हाथ में चुनाव निशान हाथी घोड़ा बैल तोता मैना है। लेकिन गौसे आज़म का चुनाव निशान बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का चुनाव निशान गुंबदे खतरा है। मेरे गरीब नवाज का चुनाव निशान मदीने वाले की मोहब्बत है, ताजदार मदीना की मोहब्बत है। आज सुन्नी मुसलमान ज़माना के पीछे भागता है, आज मुसलमान कहता है हमारे हाथ में गौस का दामन, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, गाजी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं मुसलमानों, आपके हाथ में गौसे आज़म का दामन नहीं है, आपके हाथ में मदीने वाले आका का दामन नहीं है, आपके हाथ में जो है इमाम हुसैन का दामन नहीं है। जिसके हाथ में गौसे आज़म का दामन होगा उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं होगी, जिसके हाथ में गौसे आज़म का दामन होगा उसके हाथ में जुआ का पत्ता नहीं होगा, जिसके हाथ में गौसे आज़म का दामन होगा उसके हाथ में सूदो ब्याज के रुकूम नहीं होंगे, जिसके हाथ में
गरीब नवाज का दामन होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जिसके हाथ में मदीने वाले आका का दामन होगा कभी नमाज तर्क नहीं करेगा। जिसके हाथ में इमाम हुसैन का दामन होगा कभी झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि करबला के मैदान से फातिमा के लाल ने बता दिया है, ये मेरे गुलामों सुनो सुनो, अगर दिल झुकाना होगा नाना जान की बारगाह में झुकाना। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मेरे गौस का मकाम जो है गौसे आज़म का मकाम देखो मुसलमानों। अल्लाह अकबर। आज जो है दुनिया सुन्नियत बयान करती है, अभी आपके इमाम साहब बता रहे थे कि गौसे पाक का मौजिज़ा है। नहीं मुसलमानों, वलियों की करामत हुआ करती है और नबियों का मौजिज़ा हुआ करता है। जिस तरह से अल्लाह ने तमाम नबियों में मेरे मुस्तफ़ा को लाजवाब बनाया है, उसी तरह से अल्लाह ने तमाम वलियों में मेरे गौस को लाजवाब बनाया है, गौसे आज़म को बेमिसाल बनाया है, अब्दुल कादिर को लाजवाब बनाया है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, साफ़दार बगदाद की बात चली है। हज़रात मोहतरम, किताब का मुताला करो और किताब पढ़ने की कोशिश करो प्यारे। तकरीर कर लेना कोई कमाल की बात नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं कि चाहे 1000 का मजमा हो, चाहे 4000 का मजमा हो, जिस तरह मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसी तरह हर जगह बोलता हुआ नजर आ रहा हो। ये मेरे गौस का करम है। गम नहीं लाख मुखालिफों समाने वाले मेरे आका है, मेरी लाज बचाने वाले मेरे आका है, मेरी लाज बचाने वाले। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे गौस का मकाम देखो मुसलमानों, गौसे आज़म का मकाम देखो प्यारे। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म का कितना, गौसे आज़म को कितना लाजवाब बनाया है, गौसे आज़म को कितना बेमिसाल बनाया है। ये सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, अगर हमारे घर कोई चोरी करने के लिए आए या हमारे संजू भाई बैठे हैं, इनके घर कोई चोर दाखिल हो जाए तो पहले क्या देखेगा? माल देखेगा, बर्तन देखेगा, अलमारी देखेगा, तमाम तिजोरियों को तलाशेगा। माल होगा, चोर अपने माल को जो है सारा माल जो है अपने कब्जा में लेकर के फरार हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से मुसलमानों, एक चोर है सारे बगदाद की बारगाह में पहुंचा है, गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा है, इरादा चोरी का है। जब मेरे गौस की बारगाह में पहुंचा है, अरे अल्लाह ने अभी आपके हाथ से साफ बता रहे थे कुम बिज़नी ला, नहीं मुसलमानों, मेरे गौस ने कुम बिज़नी कह के मुर्दे को जिलाया है, बल्कि अपने हुक्म से गौसे आज़म ने मुर्दे को जिलाया है। गौसे आज़म का मकाम वो लाजवाब है। बात चली है तो आपको बता रहा हूँ, जब तमाम ईसाइयों ने जो है हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में पहुँचे थे और पहुँचने के बाद अर्ज़ किए थे, ए गौसे आज़म, आपके नबी ने कहा था, आपके नबी ने इरशाद फरमाया था कि हमारी जो उलमा, हमारी उम्मत में से जो उलमा पैदा होंगे वो बनी इस्राइल के नबियों की तरह होंगे। क्या आप वाकई में जो है हमारी नबी की तरह है? गौसे आज़म ने कहा, बेशक में हम लोग तुम्हारे मेरे नबी का कौल कभी नहीं बदल सकता है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यहाँ पर एक रोशनी आप देना चाहूँगा। आज मेरी माँ और बहनें जो है तमाम बुराइयों में मुलव्विस है। मेरी माँ और बहनें अपने शौहरों को गालियाँ देती हुई नजर आ रही है और अपने आप को कहती है हम कनीज़े फातिमा है, हम कनीज़े ज़ैनब पाक है, हम कनीज़े हज़रत सकीना है। नहीं मेरी माँ बहनों, अगर कनीज़े ज़ैनब पाक हो तो अपने घर में मुसल्ला बिछा दो, कसम खुदा की सर झुकाना तुम्हारा काम होगा। फातिमा के सदक़े में सर को कबूल करना मेरे रब का काम होगा, मेरे परवरदिगार का काम होगा। आजकल की माँ और बहनों का आलम यह है कि अपने शौहरों को गालियाँ देती हुई नजर आ रही है। आपको मैं भी वहाँ ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बात चली मेरी माँ और बहनों की, करबला में फातिमा के लाल ने और फातिमा ने अपने लाल को दूध पिलाया है तो नबी के दीन के लिए पिलाया है, अज़मत कुरान के लिए पिलाया है। माँ का दूध हुसैन पिए है तो नबी के नामूस के लिए पिए है, अज़मत कुरान के लिए पिए है। माँ का दूध फातिमा के लाल पिए है तो अज़मत दीन के लिए पिए है। आजकल का बेटा माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पीता है तो गाली देने के लिए पीता है, माँ का दूध पीता है, शराब पीने के लिए दूध पीता है। ये मेरी माँ बहनों, आप सुधरने की कोशिश करो और अपने दिल में जो है हज़रत फातिमा की मोहब्बत बताओ, हज़रत फातिमा की कनीज़ बन जाओ। कसम खुदा कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मैदान मशर में कामयाब रहोगे। आज का माहौल चल रहा है, हमने देखा है, हम बहुत
और जगहों पे हमने सुना है कि आजकल की मेरी माँ और बहनें, अरे जो कनीज़े फातिमा होती है वो बड़ी लाजवाब होती है, वो बड़ी बेमिसाल होती है। करबला का मंजर याद करो मुसलमानों, हजरत मासूम अली असगर है, मैदान करबला में लेटे हैं। मासूम अली असगर के हुक्म में अपने ज़बान को होश पर पी रहे हैं। ज़माना बोल रहा है असगर को पानी चाहिए, बेशक अली असगर को पानी चाहिए था, लेकिन ज़माना के हाथ से रहे, ताजदार मदीना के हाथ का पानी चाहिए था। ए सुन्नियों मुसलमानों, आप तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी के सदके में अल्लाह ने चांद को चांदनी अता फरमाई है। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के सदके में अल्लाह ने सूरज को शुआ अता फरमाई है। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के सदके में अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई है। आज तुम उसी नबी की गुस्ताखी कर रहे हो। मिलाद कर लेना कमाल की बात नहीं है, फातिहा दिला देना ये कमाल की बात नहीं है मुसलमानों। गौसे आज़म क्या नमाज नहीं पढ़ा करते थे। गौसे आज़म की वो बात थी मुसलमानों कि एक वजू से ईशा के वजू से आपने जो है 40 साल तक जो है ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। वो गौसे आज़म का मकाम है मुसलमानों। अल्लाह अकबर। बात चली है मेरी माँ और बहनों की। आज मेरी माँ और बहनें अपने शौहरों को गालियाँ देती। गाजी कादरी इस्लामिक नेटवर्क YouTube